So, welcome to the students for the next lecture of this topic, that is torsion in the circular shaft. So, in my previous lecture, we have discussed about the shaft in series, and now today the session is I am taking here statically indeterminate shaft, और उसके बाद कंपोजिट शाफ्ट, पैरेलल शाफ्ट्स करेंगे, and then we will do some numericals, some examples, so that we can understand its concept very well. You understand? So, statically indeterminate shaft. What does it mean? How we can say, when we can say that these shafts are statically indeterminate? First, we have to understand this thing, because as you know that in axial load and members in the bar, we have already studied about this indeterminate bar क्या है, statically indeterminate bar क्या है, या statically indeterminate beam क्या है. This we have already studied. And in case of the shaft, if we will discuss about the shaft and say that is a statically indeterminate shaft, this is when both the ends of the shaft, they are fixed. You understand? In bar also, when both the ends are fixed, then the bar becomes statically indeterminate bar. Likewise, when both the ends of the shaft that is fixed, that shaft you can say this is the statically indeterminate shaft. You understand? The statical indeterminate shaft क्या है? जब इसके दोनों ends जो हैं वो फिक्स हों, तो वो जो शाफ्ट होगी, that is the condition of the statically indeterminate shaft. You understand? So let us start this now. This is a shaft here. AC is the shaft. Circular shaft I have taken here, and both the ends of the shaft are fixed. You understand? 150 Newton meter. This is the torque which we have applied on the shaft at the point B. You understand? So we have to find the values. If we have to find the values of the torque at this point A or the torque at the point C, so how we can calculate the value of this? So first of all, we will draw the free body diagram. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका free body diagram draw करेंगे. You understand? So this point is A. So this is your A point. Here is your point B. And this is your point C. You understand? तो जहाँ पे ऑलरेडी 150 न्यूटन मीटर का टार्क जो है वी हैव अप्लाइड हियर, 150 न्यूटन मीटर. यू अंडरस्टैंड? सो लेट अस अज्यूम द टार्क एट पॉइंट ए एंड सी. सपोज मैं कहता हूँ कि ए के ऊपर टार्क लाइक दिस टी ए, एंड C के ऊपर torque is like this TC. You understand? This is the free body diagram. ये क्या है आपका? ये free body diagram. We have drawn the free body diagram of the torque. The direction of the torque, this I have assumed, right? This I have assumed. It is not sure whether the direction is like this or like that. It can be clockwise toward left side, anti-clockwise toward right side, or you can say they are having the directions like this, right? So this direction we have assumed. This is not a, you can say, exact direction which I have taken. And when you will calculate the torque, the value of the torque, and if you will find that the value of the torque is having the positive sign,
So it means that the direction which we have assumed, that direction is correct. You understand? And if it is having the negative sign, तो direction हमारा क्या है? गलत है. Suppose आप कैलकुलेट करते हैं TA की वैल्यू, और TA की वैल्यू जो है आपका नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो इट मीन्स द डायरेक्शन विच आई हैव टेकन हियर on the point A means anti-clockwise direction of the torque I have taken here. So it means that my direction which I have assumed, that direction is wrong. तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको clockwise करना पड़ेगा. You understand? So this is you can say these are the assumed directions, and this only we can check when we will get the values of the respective torques, right? You understand this? So let us now, we have to calculate the value of TA and TC. Suppose we have to calculate the value TA and TC, right? So here you have seen that there are two unknowns. TA is one unknown and TC is another unknown. You understand? But we are having the three equilibrium equations. Sorry. हमारे पास कितनी equilibrium equations हैं? We are having the three equilibrium equations. Sigma fx equal to 0, sigma fy is equal to 0, and sigma m equal to 0. But in this case, sigma fx equal to 0, this equation we will not use. Sigma fy, that is equal to 0, because there is no axial force, there is no vertical force here, because it is a pure torque यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है. You understand? शाफ्ट के ऊपर क्या होता है? प्योर टॉर्क जो है वो एक्ट करता है. नो एक्सियल फोर्स, नो वर्टिकल फोर्स. So sigma fy equal to 0 and sigma fx equal to 0. That these two equations we don't take. So only we left with the one equation, that is sigma m equal to 0. Right? हमारे पास एक equation है. So before applying this equation, first I will tell you that when both the ends of the shaft, they are fixed. So I said that this is a statically indeterminate shaft. As in case of the bar, you know that when both the ends are fixed, the deformation means both the ends are fixed है, constrained है, तो deformation आपका क्या होगा? Constrained होगा. You understand? तो उसमें जो deformation होगी वो क्या होगी? Constrained होगी. So in that case, we use the compatibility equations, right? You understand? So likewise, जहाँ पे deformation तो नहीं है, but जहाँ पे जो angle of twist है, वो constrained हो जाएगा. You understand that? So angle of twist, क्योंकि shaft क्या है? That is rotating. When you apply the torque here, the shaft start rotating. So when it is constrained at both ends, so you can say that there is the constraint of the angle of twist. So that is why we say that this is the statically indeterminate shaft. You understand? So let us come to this point now. We have two unknowns, TA and TC. We have to find the value of these two unknowns. But we are only having equilibrium equations. हमारे पास कितना है? We are only having one equation, that is sigma m equal to 0. और आप कह सकते हैं that is m क्या है? Moment है, torque. This is equal to 0. Net torque. This is equal to 0. You understand? तो net torque is equal to 0. तो क्या बनेगा? If we will see here free body diagram, anti-clockwise direction I will take positive, and clockwise direction I will take negative. You understand? So it becomes TA minus 150. This is कितना है? 150 clockwise, and so it is the negative sign here, and this is TC. This is also one TC
and this is equal to 0. You understand? तो हमारे पास जो टी ए की इक्वेशन है, व्हाट इज योर टी ए? दिस इज इक्वल टू 150 plus TC. You understand this? So one equation you have got this TA. But we have two unknowns. Unknowns कितने हैं? There are two unknowns. And we have got one equation. So it means that we require how many equations? We require two equations. Second equation in case of the statically indeterminate shaft, जो second equation होगी that is the compatibility, इसको हम क्या बोलते हैं? Compatibility equation. Second equation is compatibility equation. We will use the compatibility equation. और compatibility equation जहां पे क्या होगा? What is your compatibility equation? I'll just understand this concept as both the ends of the shaft that is fixed. और जैसे मैंने आपको बताया है, this is the statically indeterminate shaft. Statically indeterminate shaft का मीनिंग क्या है? बार के केस में मैंने आपको बताया था कि उसका जो डिफॉर्मेशन है when it is fixed at both ends, बार की बात कर रहा हूं मैं. So there is you can say there is the constraint in the deformation. डिफॉर्मेशन में क्या होगा? कंस्ट्रेन होगा क्योंकि दोनों एंड फिक्स है. एंड इफ आई विल टॉक टू दिस शाफ्ट, इट बोथ द एंड्स आर द फिक्स्ड. सो इट मींस दैट जहां पे जो है शाफ्ट में क्या होगा? एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा. यू अंडरस्टैंड दिस? वी आर अप्लाइंग द टॉर्क एंड द शाफ्ट दैट स्टार्ट रोटेटिंग, सो देयर इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट. बट जहां पे जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो क्या होगा? देयर इज द कंस्ट्रेंट in the angle of twist. Why? Because both the ends are the fixed. You understand? तो ये आपका हो गया थीटा ए सी. फ्रॉम थीटा ए टू सी दोनों एंड्स फिक्स हैं, तो ए से लेके सी तक जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा दैट इज इक्वल टू 0. यू अंडरस्टैंड? थीटा ए इज इक्वल टू सी, दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज योर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन यू विल गेट कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. इसको मैं जहां पे कर लेता हूं, राइट? अब देखिए, अब थीटा ए सी दिस इज इक्वल टू 0. इट मींस दैट टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट फ्रॉम ए टू सी. थीटा ए सी मींस total angle of twist, that is total angle of twist, that is theta. total angle of twist क्या होगा? 0 होगा. तभी तो ये थीटा ए सी इज इक्वल टू 0 है. तो आर यू कैन से अब थीटा ए सी इज इक्वल टू 0, यू कैन से दैट इज थीटा ए बी. थीटा ए बी जहां से लेके जहां तक प्लस थीटा बी सी, दिस इज इक्वल टू 0. यू अंडरस्टैंड? थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी, दिस इज इक्वल टू 0. वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस. अब थीटा का क्या वैल्यू है? फ्रॉम द इक्वेशंस जो आपने ड्राइव किया था, वहां से थीटा का वैल्यू आएगा T into L G into J, that is AB, right? T into L G into J AB for AB plus T into L G into J for VC, and this is equal to 0. You understand? So second equation you will get this. This is your equation number second. ये आपकी दो equations आ गए. Equation number 1 and equation number 2. And by solving these two equations,
you can calculate the value of TA and TC, right? तो ये एक इक्वेशन है, इसको आप याद रखिएगा। इसको मिटा देता हूं यहां पे। अब इट मीन्स दैट TAB, अगर जब इसको सॉल्व करना है हमने, तो एक तो आपका क्या होगा, ये आपका इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, दैट इज द TAB। एक तो हमें TAB चाहिए, राइट? ये क्या है? दिस इज द इंटरनल टार्क TAB, कि AB के बीच में टार्क कितना है TAB। तो LAB का तो लेंथ दिया होगा आपको, सपोज इन द न्यूमेरिकल द लेंथ इज गिवन टू यू। द G मटेरियल प्रॉपर्टी है, इट्स वैल्यू इज फिक्स। J दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? तो इसका वैल्यू भी फिक्स है, तो ये तो वैल्यू आपके पास होंगी। न्यूमेरिकल्स में आपको दिया होगा कि पर्टिकुलर शाफ्ट है, इसका डायमीटर इतना है, और इन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज π/32 इंटू d⁴। यू अंडरस्टैंड? तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट TAB एंड TBC। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल टार्क। अब हमें TAB और TBC को कैलकुलेट करना है। यू अंडरस्टैंड? तो TAB को अगर आपने कैलकुलेट करना है, सपोज TAB, यू टेक द सेक्शन हेयर, जहां पे सेक्शन ले लीजिए, तो लेफ्ट साइड सेक्शन के TAB क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू TA। यू अंडरस्टैंड? तो आपका TAB इज इक्वल टू T, राइट? TAB किसके बराबर है? दैट इज TA, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्योंकि इंटरनल टार्क तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तभी तो आप ये वैल्यू निकल। TAB की जगह क्या आया? TA। दिस इज क्लियर? TAB, द सेक्शन से लेफ्ट में चले जाइए तो TAB क्या है? इसमें एक ही टार्क है, दैट इज TA, तो ये TAB दिस इज T। अब TBC देखिए, अगर मैं J सेक्शन लेता हूं, BC में एक सेक्शन लेता हूं, जहां पे J जस्ट लाइक दिस सेक्शन J, तो हमें क्या निकालना है? TBC निकालना है। फ्रॉम लेफ्ट साइड से कीजिए, दिस इज इक्वल टू TA माइनस J एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड दिस इज क्लॉकवाइज नेगेटिव, दैट इज 150, राइट? TBC इज इक्वल टू TA माइनस 150। एक तो J आ गया। और अगर मैं इसी को BC का, हमें किसका वैल्यू निकालना है? BC का। अगर मैं राइट साइड से BC का वैल्यू निकालूं, सेक्शन के लेफ्ट साइड से ये निकाला, तो राइट से निकालेंगे तो देखिए ये वैल्यू इजी हो जाएगा। सो TC दिस इज इक्वल टू, सॉरी, TBC now I am taking the value from this section towards right side। तो सेक्शन के राइट साइड में एज पर द साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा था कि सेक्शन के राइट साइड में हम क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, जो हमने साइन कन्वेंशंस में आपको इसका डायरेक्शंस के बारे में बताया था, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, राइट? तो सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव और सेक्शन के लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। यू अंडरस्टैंड? तो ये TBC दिस इज इक्वल टू TC, TBC दिस इज इक्वल टू TC, राइट? तो ये हमें TBC का भी वैल्यू मिल गया। तो मुझे बताइए, मैं वैल्यू J वाला इस्तेमाल करूंगा जहां पे, बिकॉज जहां पे सिंगल वैल्यू है, देयर इज नो नीड ऑफ दिस। तो मैं, इट मीन्स दैट ये जो आपका इक्वेशन आया था, तो मैं इस इक्वेशन को आई कैन राइट इट लाइक दिस। TAB क्या है? TAB इज इक्वल टू TA। TAB आपका TA आ जाएगा, सीधा पुट करना है। और इस तरीके से TBC आपका क्या आएगा? TC। तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? सो बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 क्या था? दैट इज TA minus 150
minus TC is equal to 0. Therefore, TA is equal to 150 plus TC. This is the one equation and this is the second equation. इन दोनों को सॉल्व करें and by solving this you will get the value of TA and TC. You understand? दोनों equation को सॉल्व करने से आपको वैल्यू मिलेगा. So you understand this thing? कि statically indeterminate shaft क्या है? When both the ends are fixed. It means that जहां पे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखना है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट शाफ्ट में जो आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होंगी, व्हेन द बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, सिर्फ देयर इज ओनली वन कंडीशन आई एम टेकिंग, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट दैट इज इक्वल टू 0. टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट इज 0. व्हाई आई एम सेइंग टोटल? बिकॉज जो ए बी का एंगल है ये 0 नहीं होगा, बी सी का 0 नहीं होगा, बट फ्रॉम ए टू सी total angle of twist that is equal to 0. This is only the one condition which we have to keep in our mind. Rest everything is same. अब इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे हम. पहले मैं न्यूमेरिकल लिख लेता हूं, then we will explain, right?
So next heading, that is the parallel shafts, that is composite shaft, composite shaft, और इसको हम आर पैरेलल shafts we बोलते हैं, composite shaft or parallel shaft. You understand? So let us understand the concept of this composite shafts and parallel shafts. First we will talk about parallel shaft, right? Composite shaft and parallel shaft, both are same, right? There is no difference. Why the word is used composite shaft, this I will tell you. This we will discuss. And parallel shaft, why we say it is parallel shaft, what is its arrangement, इसका arrangement क्या है, why we say that this is parallel shaft. The arrangement is, one is hollow shaft, right? Let us say that we have a hollow shaft and solid shaft that is inserted in the hollow shaft. You understand? Or you can say both the shafts, they are tightly sleeved over each other. You understand? You are having the hollow shaft of the bigger diameter. Definitely the diameter is तो bigger ही होगा उसका. And the solid shaft that is inserted in the hollow shaft. You understand? So this arrangement you can say, suppose you have seen it, this is the hollow shaft, और इसके बीच में सेम सर्कुलर टाइप ऑफ द एल्यूमिनियम मटेरियल है या कोई भी डिफरेंट मटेरियल है, उसका शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट अपने इसके बीच में आपने इंसर्ट कर दिया. सो इफ यू विल सी, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट? They are tightly connected and both they are parallel to each other. You understand? So this is about parallel shaft. Why we say parallel shaft? Now for the composite shaft means the two shafts which we take, that is the solid shaft and the hollow shaft. Solid shaft that is inserted in the hollow shaft. But both the shafts, they are having the different type of the materials. You understand? इनका material क्या होगा? Different type of the material. Not of the same material, but of the different type of the material. Means composite material. Say that solid shaft, this is ये जो रेड पेन से मैंने शो किया है, this is your solid shaft. And जो ब्लैक पेन से है, this is your steel shaft. इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो हम ड्रा कर लेते हैं. तो इसका क्रॉस सेक्शन ये होगा, सर्कुलर शाफ्ट है तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? सर्कुलर होगा, लाइक दिस. राइट? एंड दिस इज आपका वो है एल्यूमिनियम शाफ्ट है, तो इसका भी ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा. यू अंडरस्टैंड दिस? सो बोथ आर हैविंग द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. नाउ वी आर अप्लाइंग द सेम टॉर्क on the composite shaft. You understand why we say this is composite shaft? Because both are made of the different materials. Now why we use the different material? Because we have to increase the strength and rigidity of the shaft. किसी शाफ्ट का स्ट्रेंथ या रिजिडिटी को इंक्रीज करने के लिए, जब हम कह सकते हैं शाफ्ट को रीइंफोर्समेंट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को रीइंफोर्समेंट करने के लिए वी यूज द टू मटेरियल्स, एज दिस इज द एल्यूमिनियम एंड दिस इज द स्टील. सो इससे क्या होगा कि हमारा जो शाफ्ट है वहाँ पे उसका रीइंफोर्समेंट होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इंक्रीज रिजिडिटी हम जो है उसका इंक्रीज होगा. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द बेसिक एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टू यूज द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल्स इन द शाफ्ट. Now
This is the composite shaft and we are applying the torque T on the shaft, right? So as I told you, direction you can assume, कोई भी डायरेक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं, राइट? और ये आपने टॉर्क टी इसके ऊपर अप्लाई किया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टॉर्क टी, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें टॉर्क टी का वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करना है. हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टॉर्क टी? So first, you understand this thing that we are applying the torque T on whole of this shaft. You understand? And torque T, which we will apply here in this composite shaft, which is made up of the two different material. I will say that this is your steel. ये जो ब्लैक हालो शाफ्ट है ये आपका स्टील मटेरियल का है और ये आपका एल्यूमिनियम है. यू अंडरस्टैंड? ये सॉलिड शाफ्ट मीन्स दिस इज योर एल्यूमिनियम, राइट? So when we are applying the torque T on the shaft and both they are tightly connected to each other in parallel direction, so it means that this torque T, ये torque T, TS means TS क्या होगा? टॉर्क इन स्टील भी डेवलप होगा यहाँ पे और टॉर्क इन एल्यूमिनियम भी डेवलप होगा. यू अंडरस्टैंड? जो टॉर्क T है, टोटल टॉर्क वी आर अप्लाइंग ऑन दिस composite shaft. So TS and TA, TS and TA, that is torque in steel shaft and torque in aluminium shaft. You understand? Because we are applying the torque T on whole of the shaft. So you can say some torque TS is developed on the steel shaft and some value of the torque, that is TA, that developed on the aluminium torque. You understand? Now some value of TS, some value of TS and some value of TA develop on the steel and aluminium torque, एल्यूमिनियम शाफ्ट. तो कुछ वैल्यू टीएस का डेवलप होगा. टीएस मीन्स टार्क ऑन द स्टील शाफ्ट. कुछ टार्क आपका कहाँ पे डेवलप होगा? एल्यूमिनियम शाफ्ट. बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, टाइटली कनेक्टेड टू ईच अदर. जो टार्क टी होगा यू कैन से दैट इज डिवाइडेड इन टू टार्क्स. दैट इज वन पार्ट ऑफ द टार्क दैट इट इज अप्लाइंग ऑन दिस एल्यूमिनियम एंड वन पार्ट ऑफ द टार्क that is applying on the steel. You understand that? So it means that total torque जो हो आपका होगा sorry, so it means that in order to collect, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितना टॉर्क. in order to कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है? TS एंड TA. कितना टॉर्क स्टील के ऊपर होगा, डेवलप होगा और कितना टॉर्क हमारा एल्यूमिनियम के ऊपर डेवलप होगा. इट मीन्स दैट वी आर हैविंग द टू अननोन्स. हमारे पास क्या है? दो अननोन्स हैं, टॉर्क इन स्टील एंड टॉर्क इन एल्यूमिनियम. तो एक तो हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन है. तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम इक्वेशन
इस केस में तो एक ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेंगे हम, दैट इज सिग्मा m इक्वल टू 0, राइट, दैट इज सिग्मा m दैट इज इक्वल टू 0 मीन्स नेट टॉर्क, m क्या है, मूवमेंट, टॉर्क इज मूवमेंट, therefore r you can say r sigma t this is equal to 0, you understand, sigma t is equal to 0 है। अब देखिए, तो इसका मतलब है कि एक तो इक्वेशन बनेगी टोटल t मीन्स टोटल टॉर्क अप्लाइड ऑन द कंपोजिट शाफ्ट, दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, जैसे मैंने बताया कि दिस टॉर्क दैट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मैथमेटिकली आई एम सेइंग, बट say some part of the torque is developing the torque on the steel, and some part of this total torque that is developing the torque on the aluminium. So it means the total torque, this is equal to Ts plus Ta, right? तो टोटल टार्क क्या होगा, एक तो इक्वेशन आपको ये मिलेगी, total torque, this is equal to Ts plus Ta, this is equal to equation number 1. So this is your equilibrium equation, total torque, this is equal to Ts plus Ta. So plus I have taken because as the Ts torque on the steel shaft and torque on the aluminium shaft, both are acting in the same way, दोनों आपस में टाइटली कनेक्टेड हैं, तो अगर ये इस तरीके से ये टार्क होगा तो दोनों के ऊपर एक ही डायरेक्शन में टार्क होगा ना, सो इसलिए दिस इज एडेड लाइक दिस इक्वेशन T इज इक्वल टू Ts प्लस Ta, यू अंडरस्टैंड। अब वी हैव गॉट वन इक्वेशन हियर, बट एज आई टोल्ड यू दैट वी नीड सेकेंड इक्वेशन आल्सो, राइट, तो हमें सेकेंड इक्वेशन भी तो चाहिए, बिकॉज वी आर हैविंग द टू अननोन्स हियर, टू अननोन्स मीन्स वी रिक्वायर मिनिमम टू इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टू अननोन्स। सो हियर दिस इज द वन इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के एक इक्वेशन हमें मिला। दूसरी जो इक्वेशन होगी दैट इज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ये भी आपकी कंपैटिबिलिटी equation, मतलब you can say it is also treated as the statically indeterminate shaft, जे भी आपका स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट शाफ्ट को हम इसको ट्रीट कर सकते हैं या ट्रीट किया है। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जहां पे क्या होगी, देखिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो आपका थीटा एस होगा, थीटा एस मीन्स एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द स्टील शाफ्ट, थीटा यही होगा, एंगल ऑफ द ट्विस्ट ऑफ द स्टील शाफ्ट, दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द एल्यूमिनियम शाफ्ट, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज बोथ आर टाइटली कनेक्टेड। जब दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो जो एंगल ऑफ ट्विस्ट इसका इधर से ऐसे होगा, स्टील का होगा, तो वही एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका क्या होगा, एल्यूमिनियम का होगा, यू अंडरस्टैंड दिस। So this is the second equation, very important equation. This is the second equation, compatibility equation, जहां पे ये यूज होगा, ये चीज आपको याद रखनी है, that is equation number 2, right? तो थीटा एस की वैल्यू क्या होगी, that you can calculate. So theta s, this is equal to Ts torque in steel into length of steel part, G of steel into J of steel, you understand? और theta A, T torque in aluminium into length of aluminium, तो LS LA ये आपस में बराबर होगा, बिकॉज लेंथ तो सेम है, तो G एल्यूमिनियम का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, जी की वैल्यू, स्टील का जो जी का वैल्यू है डिफरेंट होगा,
और जे एल्यूमिनियम का डिफरेंट होगा बिकॉज द डायमीटर ऑफ द एल्यूमिनियम इज डिफरेंट एंड डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट दैट इज डिफरेंट, यू अंडरस्टैंड। तो जो आपकी जे की वैल्यू होगी, क्योंकि आपको पता है जे आपका, अगर एल्यूमिनियम की बात करूं मैं, ये होगा π/32 इंटू D4, बिकॉज एल्यूमिनियम मैंने लिया है, ये आपका कौन सा शाफ्ट है, सॉलिड शाफ्ट है यार। तो जो ये आपका एस होगा स्टील, दिस इज द हॉलो शाफ्ट, ये आपका हो गया π/32। ये इसका जो डायामीटर एल्यूमिनियम का है, जो उसको मैंने डी लिया है, आई विल से दिस इज द इंटरनल डायामीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट, तो दैट इज डी आई, राइट। और एक्सटर्नल डायामीटर सपोज करो मैं इसका कहता हूं, एक्सटर्नल डायामीटर इसका कितना है, डी नॉट इज द एक्सटर्नल डायामीटर, और ये जहां से लेकर जहां तक जो आपका डी है, दिस इज इक्वल टू डी नॉट डी आई। तो ये फार्मूला इसका ये वाला होगा, डी नॉट 4 माइनस डी आई 4, राइट। तो जे आपका फार्मूला होगा आपका किसका, जे एस का। So this is the way. Now these are the two equations which we got, and by solving these two equations, equation first and solve, by solving these two equations, one and second, इन दोनों को सॉल्व करो तो हमें टी एस की वैल्यू भी मिल जाएगी और टी ए की वैल्यू भी मिल जाएगी, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कंपोजिट शाफ्ट, यू अंडरस्टैंड, सॉरी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कंपोजिट शाफ्ट और द पैरेलल शाफ्ट। व्हाट इज देयर कंक्लूजन, इसका दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल शाफ्ट मीन्स बोथ आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स हाउ one is a solid shaft and other is the hollow shaft, solid shaft that is inserted in the hollow shaft, right? So जब ये अरेंजमेंट वो आपका होगा शाफ्ट का, तो क्या होगा, दिस इज द पैरेलल अरेंजमेंट, यू कैन से पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द शाफ्ट, राइट। तो ये पैरेलल अरेंजमेंट आपका शाफ्ट का होगा। नाउ द सेकंड थिंग इज वी आल्सो से कंपोजिट शाफ्ट्स। व्हाई वी से कंपोजिट शाफ्ट, बिकॉज द मटेरियल व्हिच वी टेक in case of these two shafts, that is the solid shaft as well as the hollow shaft, the material is different. We don't take the same material, we take the different material. Because why we take the different material? To increase the strength and rigidity of the shaft, you understand। इसका strength और rigidity को increase करने के लिए हम क्या करते हैं, shaft का strength rigidity increase कैसे करेंगे, by taking the different type of material, you understand। This is all about its जो नाम डेफिनेशंस, कंपोजिट क्या है, पैरेलल क्या है, तो इसके बारे में है। नाउ कम टू द कंसेप्ट, कि अगर आपका ये कंपोजिट शाफ्ट है तो उसमें कंसेप्ट क्या है। सपोज दिस इज योर कंपोजिट शाफ्ट मेड ऑफ द टू डिफरेंट मटेरियल, दैट इज एल्यूमिनियम एंड द सेकंड शाफ्ट दैट इज मेड ऑफ द स्टील। सो आई एम अप्लाइंग द टॉर्क टी ऑन द शाफ्ट, यू अंडरस्टैंड। टॉर्क टी मैं शाफ्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। सो व्हाट इज देयर, जब मैं टॉर्क टी इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो व्हाट हैपन्स, ये जो टॉर्क है, ये आपका टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके ऊपर, सम पार्ट ऑफ द टॉर्क दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्टील शाफ्ट एंड सम वैल्यू ऑफ द टॉर्क दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एल्यूमिनियम शाफ्ट, राइट। बट टोटल टॉर्क आपका सेम रहेगा। सम वैल्यू टॉर्क टी का स्टील के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेवलप होगा, और सम वैल्यू जो है टॉर्क डेवलप होगा टी ए के ऊपर। बट इफ आई से दैट द टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस टॉर्क टी दैट इज द सम ऑफ द बोथ द टॉर्क्स, दैट इज टी एस प्लस टी ए, यू अंडरस्टैंड। क्योंकि यही टॉर्क तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहां पे, तो ये आपका एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बन गया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक आपका बन गया। नाउ यू गॉट टू टॉर्क्स हियर, दैट इज टी एस एंड टी ए।
It means we are not knowing the values of TS and TA, but we have to find the value of TS, TA. Then how we can find? One equation that we will get sigma T is equal to 0 means total torque. This is equal to the sum of the torque in steel plus torque in aluminium. This is the equation number 1. But here we are having the two unknowns and I'm having only the one equation. So two unknowns means we need the two equation. Second equation what we take, this is very important to understand और इसको याद भी रखना है. कंपोजिट शाफ्ट में हम जो सेकंड इक्वेशन लेंगे वो आपकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होगी. और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी कि दोनों शाफ्ट जो हैं दे आर टाइटली फिक्स्ड आर अटैच टू ईच अदर. जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका एक शाफ्ट का होगा सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका दूसरे शाफ्ट का होगा एंड दे आर पैरेलल आल्सो. यू अंडरस्टैंड? तो एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द स्टील शाफ्ट दिस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द एल्यूमिनियम शाफ्ट. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. तो सेकेंड इक्वेशन को थीटा का वैल्यू पुट कर लीजिए. बाकी जैसे आपको बताया है कि टी ए आपने लेना है, टी एस टी अब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें चीज़ें जैसे सारी क्लियर होगी. तो लेंथ तो आपका सेम होगा. जो आपका जो एल ए है, एल ए ये एल एस और एल ए ये आपका क्या है, ये सेम, बिकॉज ये पैरेलल है, टाइटली कनेक्टेड है. जो लेंथ ऑफ द स्टील का होगा वही लेंथ आपका एल्यूमिनियम का होगा. यू अंडरस्टैंड? So by solving these two equations, this is equation number 2, this is equation number 1, we can calculate the value of TS and TA. You understand? So this is about the composite shaft or the parallel shaft. So this is the numerical which I have already written here so that there should be no wastage of the time. And ये numerical मैंने अभी लिखा है. Now we will discuss about the numerical here. A composite, first we will read the numerical. This is a composite shaft, right? This is the composite shaft. This side is made. कैसे बना है? Enclosing the solid aluminium rod of 60 mm diameter. तो जो इसका एल्यूमिनियम का डायमीटर है ये लिखते जाते हैं यहाँ पे गिवन. डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम रॉड मीन शाफ्ट ले लीजिए. एल्यूमिनियम दैट इज द सॉलिड शाफ्ट है. डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम शाफ्ट दिस इज इक्वल टू 60 mm diameter. This is given, first thing. Second, in a brass tube, this is the hollow जो आपकी ट्यूब है वो क्या है, that is the made of the material किसका, ब्रास का, 10 mm thick. मीन्स इसका थिकनेस जो आपका बताया है जे वाला और जे वाला, दिस थिकनेस इज 10 mm. तो जहां पर भी तो जो थिकनेस होगा 10 mm होगा. तो इसका मतलब क्या होगा, जो आउटर डायामीटर होगा, दिस इज द हॉलो शाफ्ट यू कैन से. तो आउटर डायामीटर ऑफ दिस ब्रास हॉलो शाफ्ट का आउटर डायामीटर क्या होगा, आउटर डायामीटर ऑफ हॉलो ब्रास शाफ्ट कितना हो गया, 60 आपका जे diameter of the solid shaft. This is treated as the inner diameter of the hollow shaft plus 10 plus 10 कितना 20. So this is 20 means ये आपका हो गया 80 mm, right? तो आउटर डायमीटर मीन्स D0 हमें मिल गया. और जो DI होगा इसका इनर डायमीटर होगा. इनर डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट दैट इज द डायमीटर ऑफ द एल्यूमिनियम शाफ्ट, जो सॉलिड शाफ्ट इसके बीच में स्टार्ट किया है. तो इनर डायमीटर इसका क्या होगा 60 mm. यू अंडरस्टैंड दिस? जहां से हमें ये चीज मिल गई. टॉर्क कितना है, हाउ मच टॉर्क वी आर अप्लाइंग, द वैल्यू ऑफ द टॉर्क दिस इज गिवन एज
5 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज 5 किलो न्यूटन मीटर। तो जो टार्क आपने अप्लाई किया है दिस इज 5 किलो न्यूटन मीटर। यू अंडरस्टैंड? दिस इज आल्सो गिवन। फाइंड द shear स्ट्रेस इन बोथ द शाफ्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें shear स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, दैट इज टाउ बी। दिस इज द shear स्ट्रेस इन brass and tau A, that is the shear stress in aluminium. Value of G is given 40 GPa for brass। तो for brass का G है आपका 40 GPa और एल्यूमिनियम का G कितना है? That is 28 GPa। You understand? So these things are given to us। निकालना क्या है वो भी मैंने लिख लिया और फाइंड आउट क्या करना है वो भी निकल लिया। अब इसका जरूरत नहीं है। Understand? So everything is given here। सो फॉर सॉल्विंग दिस हमें क्या सॉल्व करना है? देखिए पहले देखिए हमें सॉल्व क्या करना है। फॉर सॉल्विंग द shear stress in brass shaft and एल्यूमिनियम शाफ्ट, यही फाइंड आउट करना है हमें। दैट इज टाउ V एंड टाउ A, राइट। सो shear स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करना है? इन टर्म्स ऑफ द टॉर्क यू नो द रिलेशन टाउ इज इक्वल टू, दिस इज द रिलेशन, टाउ इज इक्वल टू 16 into T pi dq, right? 16 into T pi dq, this is the formula to calculate this। अब टाउ भी अगर आपने निकालना है, मीन्स अगर आपको टाउ भी निकालना है तो यू नीड 16 TB टॉर्क इन B pi dq, और अगर आपने टाउ A निकालना है दिस इज 16 TA pi dq, राइट। तो जहां से देखिए एक तो हमें TB की वैल्यू नहीं है हमारे पास और TA की वैल्यू नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज गिवन। डायामीटर हमें दिया गया है, तो डायामीटर जे अगर जे वाला तो जे वाला डायामीटर पाई डी क्यूब नहीं होगा, जे आपका हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि दिस इज द ब्रास वाला हॉलो शाफ्ट है, तो ये आपका हो जाएगा डी नॉट क्यू माइनस डी आई क्यू, दैट इज इनर डायमीटर आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर, बिकॉज द ब्रास शाफ्ट दिस इज द हॉलो शाफ्ट। ये डी नॉट भी आपको पास है, डी आई भी आपके पास है, ये निकल जाएगा। और जो सॉलिड शाफ्ट है ये वाला, तो डी की वैल्यू भी आपके पास है, दैट इज। तो मीन्स बेसिक थिंग हमें क्या चाहिए? हमें टी ए एंड टी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू अंडरस्टैंड? तो हमें फाइंड आउट करना है टी ए एंड टी बी की वैल्यू। जहां से आप अगर देखें तो टी ए और टी बी फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट हम क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास है। फर्स्ट क्या है, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन, राइट। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या लगेगा जहां पे, दैट इज तो इसमें इक्विलिब्रियम क्या है, इसमें ये कंपोजिट शाफ्ट है तो सीधा इक्वेशन आपके पास होगा ये
टॉर्क टी, टोटल टॉर्क टी, इसमें एक इक्वेशन तो जाएगी, टोटल टॉर्क टी दिस इज इक्वल टू टी बी प्लस टी ए. This is equation number B, right? So total torque which we have applied on whole of complete shaft, you can say this is the sum of the torque developed on the shaft B means brass जो आपकी shaft है उस पे, and TA that is the torque which developed on the shaft aluminium. You understand? तो एक तो ये हो गया. दूसरा इसमें जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन थी, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हियर? दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा बी दिस इज इक्वल टू थीटा ए. एंगल ऑफ ट्विस्ट दैट इज सेम बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर. तो इसका जो एंगल ऑफ ट्विस्ट ब्रास शाफ्ट का होगा, जिसे हम हॉलो शाफ्ट भी कहते हैं, दैट इज सेम इक्वल टू द एल्यूमिनियम शाफ्ट बिकॉज बोथ आर फिक्स्ड, टाइटली कनेक्टेड, आर टाइटली इंसर्टेड टू ईच अदर, एंड मोर ओवर दे आर द पैरेलल शाफ्ट. सो द एंगल ऑफ द ब्रास शाफ्ट which is made of the brass material, that is equal to this. This is the second equation. You understand? तो compatibility equation आपको मालूम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी बी इंटू एल बी जी बी इंटू जे बी, राइट? और दिस इज इक्वल टू टी ए इंटू एल ए GA to JA. You understand? तो इसमें T की वैल्यू तो कर लो, ये गिवन दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 किलो न्यूटन मीटर. दिस इज इक्वल टू TA प्लस टी. एक तो ये इक्वेशन आपकी, राइट? अब देखिए एल बी और जे, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड दिस? आपकी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. तो अब हम क्या करेंगे, जहां से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. ये आपका आ गया टी वी, जब ऐसे ही रहेगा. जी वी की क्या वैल्यू है, दैट इज गिवन, ब्रास का जी वी दिया है, दैट इज 40 इंटू 10⁻³ GPa में दिया है, तो दिस बिकम्स 40 इंटू 10⁻³ 40 इंटू 10⁻³ एंड व्हाट इज योर, दिस इज JB, this is pi by 16 D04 minus, sorry, pi by not 16, pi by 32, that is the J, pi by 32, pi D0 cube minus DI cube. You understand? D04 minus DI4. You understand? So pi by 32 D04 because this is the hollow shaft. B brass shaft क्या hollow है, तो ये आपका आ गया D04. What is D0? That is 80⁻⁴ minus 60⁻⁴. You understand? क्या गया पहला. Now this is equal to, this equation is equal to, that is TA. ये तो ऐसे ही आएगा, इसका अननोन है, एंड इसका था ब्रास का कितना है, दैट इज 28 इंटू 10⁻³
into pi by 32 60⁴, because this is a solid shaft, तो जो सॉलिड का डायमीटर दिया है 60, तो ये आपका पाई बाई 32 कैंसिल हो गया, 10⁻³ आपका कैंसिल हो गया। यू अंडरस्टैंड? सो वाई सॉल्विंग टी ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, देयरफॉर जहाँ पे लिख लीजिए, देयरफॉर टी ए सॉल्व करके मुझे बताइए हाउ मच इट इज। टी इन टर्म्स ऑफ टीवी वैल्यू आएगी, टी ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टीवी, दैट इज 0.324 टीवी, राइट? 0.324 टीवी। तो टी ए की वैल्यू 0.324 टीवी। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपकी ये वैल्यू होगी। अब ये जो वैल्यू टी ए की आई है इन टर्म्स ऑफ टीवी, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में ये वैल्यू आप पुट कर लें। सब्स्टिट्यूट टी ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये आपका आ जाएगा, देयरफॉर टी ए क्या है, 0.324 टीवी प्लस टीवी, दिस इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, राइट? 5 इंटू, तो जहां से आप टीवी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, सो व्हाट इज योर टीवी, बताइए मुझे, हाउ मच टीवी, टीवी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए आप। सो टीवी इज इक्वल टू 3.77 किलो न्यूटन मीटर, इसने न्यूटन किलो में ही रहने दिया है, तो ये किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। 3.77 किलो न्यूटन मीटर। यू अंडरस्टैंड? टीवी की वैल्यू आ गया। अब टीवी की वैल्यू आपके पास आ गई, तो टी ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। व्हाट इज योर टी ए? दिस इज इक्वल टू 0.324 इंटू टीवी, तो टीवी की वैल्यू पुट कर लो, दिस इज 0.324 एंड व्हाट इज योर टीवी, दैट इज 3.77। तो कैलकुलेट करके बताइए टी ए is how much? Tell me by calculating this with the numeric calculator. This is 1.23. This is 1.23 किलो न्यूटन मीटर। You understand? तो आप जहां से देखिएगा, दिस इज 3.77 है, दिस इज 1.23 है। अगर इसे हम सम करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। So you can say that torque T that is distributed among the two shafts, that is one hollow shaft and the solid shaft, which makes the composite shaft. तो आप जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आपको टी ए और टी बी की वैल्यू मिल गया। यू अंडरस्टैंड? सो टी बी इज दिस वन एंड टी ए इज दिस वन। अब आप कैलकुलेट अपना क्या करना है, टी ए और टी बी रहने दीजिए सामने, इसको लिख लेते हैं हम। तो टी ए आपका आया, टी ए दिस इज इक्वल टू 1.23 किलो न्यूटन मीटर और टी बी दिस इज इक्वल टू 3.77 किलो न्यूटन मीटर, राइट? तो टी ए एंड टी बी हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस लगाया, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया और जहां से हमें टी ए और टी बी के वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। यू अंडरस्टैंड? नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टाउ बी। पहले हम कर लेते हैं टाउ ए, shear stress, right? So this is equal to 16 into T pi dq, right? 16 into T pi dq, pi dq। T कौन सा आएगा? TA,
राइट। वैल्यू रखो और निकाल लो आप। सो दिस इज इक्वल टू 16 इंटू टी ए क्या है 1.23 पाई डी क्या है 60 का क्यूब। यू अंडरस्टैंड। 1.23 किलो न्यूटन में कर लो ये न्यूटन मीटर, राइट। तो सॉल्व करके बताइए टाउ ए कितना आ गया आपका। व्हाट इज योर टाउ ए। $29। तो किलो न्यूटन मीटर, तो मैं इसको किलो न्यूटन अगर एमएम करना है तो इसको 10.6 से कर ले, राइट। क्योंकि शेयर स्ट्रेस का वैल्यू मीटर में तो होगा नहीं, ये एमएम में होगा, तो ये 10.6 आ जाएगा, राइट। तो देयरफॉर टाउ ए आपने कैलकुलेट कितना किया, टेल मी हाउ मच इट इज। टाउ ए दिस इज इक्वल टू 29 MPa, that is 29 MPa, right। और अगर अपने टाउ वी करना है shear stress in the hollow shaft, that is equal to 16 into TB pi D naught Q minus DI Q। You understand? बिकॉज दिस इज हालो शाफ्ट, तो मैंने हालो शाफ्ट का ये आउटर डायमीटर ये ले लिया। तो दिस इज इक्वल टू 16 इंटू टी बी, दैट इज 3.77। दिस इज किलो न्यूटन मीटर है। हम स्ट्रेस को न्यूटन MPa में लेंगे, तो MM जहाँ पे चाहिए हमें, तो इसको 10.3 तो ऑलरेडी था किलो का, तो 10.3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10.6। अब स्ट्रेस आपको MPa में मिलेगा। यू अंडरस्टैंड। सो पाई एंड व्हाट इज योर डी नॉट, दैट इज 80 का क्यूब, राइट। तो सॉल्व करके बता दीजिए मुझे टाउ बी दिस इज इक्वल टू 54.86 MPa। सो दिस इज 54.86 MPa because this is a stress। तो ये आपका आंसर आ गया। यू अंडरस्टैंड। तो जहां पे देखा आपने कि स्ट्रेस अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टॉर्क वी हैव टू फाइंड आउट। कंपोजिट शाफ्ट है तो दोनों शाफ्ट के ऊपर जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें जो कंपोजिट में हमने पढ़ा था, जो कंसेप्ट पढ़ा था, वो क्या कंसेप्ट था, दो इक्वेशंस हम यूज करते हैं। एक इक्वेशन तो होगी जो टोटल टॉर्क है, दिस इज इक्वल टू द टॉर्क ऑफ द सम ऑफ द कंपोजिट शाफ्ट्स। जो दो कंपोजिट शाफ्ट्स होंगी, टोटल टॉर्क जो है उनके सम के बराबर होगा। तो वहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा एंड द सेकेंड इक्वेशन यू विल गेट, वो क्या है, दैट इज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। एज बोथ द शाफ्ट आर टाइटली फिक्स्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो द एंगल ऑफ द ट्विस्ट ऑफ वन शाफ्ट दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द अदर शाफ्ट। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका न्यूमेरिकल आ गया प्रॉब्लम। इससे आपको पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। और अब जो नेक्स्ट इसके बाद वाला टॉपिक होगा, दैट यू मस्ट नोट डाउन, that is a very important topic, that is the comparison of the hollow shaft and the solid shaft. Which shaft is better, whether it is hollow shaft or the solid shaft, and what is the criteria of the strength of the shaft, किसके ऊपर डिपेंड करती है, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या पैरामीटर का उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीजें जो नेक्स्ट लेक्चर है, बिकॉज दैट वाज ए वेरी कंसेप्चुअल लेक्चर। वो जो आपका लेक्चर होगा वो क्या है, मेरा वेरी कंसेप्चुअल होगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स तो होंगे, न्यूमेरिकल्स से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि इफ़ वी हैव टू चूज द टू शाफ्ट्स, एक आपकी सॉलिड शाफ्ट है, हॉलो शाफ्ट है, तो वी हैव टू सी दैट विच शाफ्ट इज बेटर इफ वी आर हैविंग द सेम वेट
देन उसके बाद स्ट्रेंथ जो है किस शाफ्ट का बेटर होगा। जहाँ अगर दोनों का स्ट्रेंथ सेम है तो उसका वेट किस शाफ्ट का ज़्यादा या कम होगा। ये दो कंडीशंस होंगी और ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंडीशंस वी चूज द शाफ्ट। हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा शाफ्ट चूज करना चाहिए, विच इज़ बेटर फॉर दैट। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा इसमें है दैट इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल लेक्चर, और उसमें सारे बच्चे उसको अटेंड करें। जिन्होंने नहीं देखा है वो जो यूट्यूब में आप उसको अच्छे तरीके से देख लें, और दैट इज़ अ वेरी गुड लेक्चर, राइट। तो आज आपका इतना ही था। इसमें हमने स्टैटिकली इंडिटरमिनेट शाफ्ट भी क्लियर किया, कर दिया, कंप्लीट किया, और साथ में हमने कंपोजिट एंड पैरेलल शाफ्ट को कंप्लीट किया, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।